students, hope you people are staying safe in home. So today's our topic is reception theory. So आज हम लोग जानने वाले हैं कि reception theory होता क्या है. So this is one of the important theory of mass communication. Actually इस theory में हम लोग पढ़ते हैं कि the message we receive from media उसको कैसे we use to decode और कैसे we every single public use to decode the message according to him or herself. So in this theory what we going to read ki how the messages are going to decode by the audience. So in this theory we want to first understand the meaning of reception. Reception means to receive things, some things or to get something. किसी चीज को रिसीव करना या किसी चीज को पाना. तो रिसेप्शन थ्योरी इज ऑल अबाउट गेटिंग मैसेज. तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द रिसेप्शन थ्योरी इज गिवन बाय स्ट्रॉटहॉल. सो टुडे वी विल ओनली टच द बेसिक्स ऑफ रिसेप्शन थ्योरी. दिस थ्योरी इज गिवन बाय स्ट्रॉटहॉल. तो दिस थ्योरी में जो होता है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट मीडिया. हम लोग को सोशल मीडिया से कुछ मैसेजेस मिला, हम लोग को टीवी से कुछ मैसेज मिला, हम लोग को प्रिंट मीडिया से मैसेज मिला. एंड एवरी पीपल हैव देयर ओन रिएक्शन टूवर्ड्स डिफरेंट मैसेजेस. क्योंकि हर पब्लिक का अपब्रिंगिंग अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, सराउंडिंग अलग है. सो दैट्स वाई एवरी पीपल रिएक्ट इन देयर ओन मैनर. सो इफ अ पर्सन गेटिंग अ मैसेज, how he or she will react on that message. This reception theory is all about that ki how a person react on a specific message. So first of all, a messenger or a producer make a message for their audience, and in that message he feels whatever he wants to give, whatever details he want to give about the product or whatever message he want to send towards the public. He said this message according to himself. So in this theory there are basically three types of receivers or three types of audience. First is known as dominant. डोमिनेंट का मतलब है कि जो इजीली जैसा मैसेज भेजा जा रहा है प्रोड्यूसर के थ्रू या फिर जो मैसेज भेजा जा रहा है आपका कंपनी के थ्रू उसको डायरेक्टली वैसा ही ले रहे, उसके हाँ में हाँ मिला रहे. ओके, फाइनली दे आर एक्सेप्टिंग द मैसेज एज द मैसेज गिवन टू द ऑडियंस. जैसा मैसेज बोल रहा है कि ठीक है भाई हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस मार्केट में भेज रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको ये फायदा करेगा, ये सर्विस आपको ये फायदा करेगा, एंड द ऑडियंस आर टोटली बिलीविंग इन दैट कि ओके फाइनली ये प्रोडक्ट और ये सर्विस पूरे हमारे फायदे के लिए, पूरे हमारे लिए है. सो फाइनली दे आर बाइंग दैट प्रोडक्ट. एंड द नेक्स्ट कस्टमर्स और नेक्स्ट ऑडियंस आर negotiated. Means they are partially accepting the things and partially not accepting the things. Means they are accepting half of the message is right and half of the message is not right. So they are accepting the good part of the message कि जिनको वो लग रहा है कि ठीक है इतना पार्ट सही है, इसको हम रिसीव कर रहे हैं, ये सही बात है, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. बट द मैसेज का हाफ ऑफ द पार्ट इज नॉट राइट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, इसको हम नहीं रिसीव कर रहे. तो दे आर नोन एज नेगोशिएटेड ऑडियंस. एंड द थर्ड वन इज ऑपोजिशनल, यानी कि टोटली इन ओपोजिशन, जो टोटली उसके अगेंस्ट है या ओपोजिशन में है, उनको कहा जाता है थर्ड कैटेगरी का ऑडियंस. और इस केस में होता है कि ऑडियंस आर टोटली अगेंस्ट द मैसेज, कि वो पूरी तरह से बोल रहे हैं कि नो, ये जो बात है, ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये जो सर्विस है, ये टोटली इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट, ये हम इस चीज को नहीं मानते. वी आर टोटली अगेंस्ट about this message and we are totally not accepting this message. So this is the three categories of our audience. First is dominant, second is negotiated, and third is totally opposition. So these three audience are the main audience of reception theory. And in this theory I hope you people were able to understand that reception theory is all about receiving message and receiving messages in your own terms. When we are sending a message towards audience, it is upon audience ki how they are taking the message. Either they will be dominant, either they will be negotiable, either they will be negotiating, or either they will be totally opposition to the message. And in this I want to give you some example. Like अगर टीवी में फेयर एंड लवली का एड दिखाता है, फाइन, एंड देयर आर थ्री पीपल सिटिंग देयर एंड वाचिंग टीवी, या फिर थ्री डिफरेंट पीपल ऑफ थ्री डिफरेंट स्टेट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके फाइन, फर्स्ट द गर्ल इज टोटली एक्सेप्टिंग कि ओके फाइन दिस फेयर एंड लवली इज गोइंग टू वर्क ऑन माई फेस एंड आई एम गोइंग टू गेट फेयर. तो शी विल टोटली डोमिनेट टूवर्ड्स द मैसेज और वो जाके वो प्रोडक्ट को खरीद लेती है. एंड द सेकेंड पर्सन इज पार्शली, मतलब ही इज लाइक ओके फाइन, I don't know whether it is going to help me for fairness or not, but somehow it is help me to glow my skin. So that's why he is partially accepting that message. And third one is that कि totally oppositional,
कि भाई ये इस बात को मानता ही नहीं कोई ऐसा क्रीम आ सकता जो काले आदमी को गोरा कर सकता है। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्शन थ्योरी। कि आई होप कि यू पीपल विल अंडरस्टैंड दैट, आई होप कि यू पीपल विल अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड